Good evening, children. Today I am going to explain about the difference between living things and non-living things, or living beings and non-living things. So children, there are so many points given in your book. First point is living things are made up of cells. Then question arises here, what is cell? Children, all living things are made up of cell. So cell is called as the basic unit of life. Without cell, there is no living organism on the surface of the earth. Either they are plants or animals. All are made up of cells. And children, since all living beings are made up of cells, so cells are called as structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life. Because without cell, there is no living organisms on the surface of the earth. And we can't see cell with the help of our naked eyes. इसका मतलब ये होता है कि हम खुली आँखों से हम सेल को नहीं देख सकते. हम माइक्रोस्कोप की सहायता से सेल को देखते हैं. Okay children, and children, you know and it is found that a newly born baby has about 2000 million cells. मतलब न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी में 2000 सेल्स होता है. ओके चिल्ड्रन, सो इन दिस लिविंग वर्ल्ड देर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक सेल के मिलने से बने होते हैं. देर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, and these organisms are called as unicellular organisms because their body are made up of single cell. The examples are bacteria, yeast, amoeba. Amoeba is also a living organism which is made up of single cell. एक ही सेल के मिलने से बना हुआ होता है. And we human being animals are made up of millions and millions and millions of cells. So we are called as multicellular organisms. Examples are human being, cats, horses, ants, elephants, dogs. These are multicellular organisms because in their body there are millions and millions of cells are present inside their body. In multicellular organisms, all the things are taking place. It means there are different systems are present in multicellular organisms. और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में सारा काम होता है, उसी प्रकार एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है. Then children, first difference is living things are made up of cells. Non-living things are not made up of cells. They are made up of atoms or molecules. Then what is the difference between plant cell and animal cell? In plant cell, cell wall is present, but in animal cell there is no cell wall is present. आइए second thing, living things grow. लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होता है. आप जहाँ पढ़ रहे हो आपके आसपास बुक्स रखी है, कॉपीज रखी है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है. आप देखे होंगे लिविंग बींग्स में ग्रोथ होता है. इट मीन्स एक छोटा प्लांट स्लोली एंड स्लोली वो एक ट्री बन जाता है. एक छोटा बच्चा ग्रो होकर के एक चाइल्ड बनता है, फिर चाइल्ड बन के वो एडल्ट बनता है,
एडल्ट बनकर फिर वो ओल्ड हो जाता है, इट मीन्स उसमें ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन ऑल लिविंग बींग्स, बट दिस इज नॉट टेकन प्लेस इन नॉन लिविंग थिंग्स। दिस इज सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड एंड वाटर चाहिए, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड food and water to survive. Okay, so children, here I am going to say about one process. It is called as photosynthesis. Plants make their food by the process it is called as photosynthesis. Plants take carbon dioxide and water from the soil to make their food, and the process is called as photosynthesis. We animals depend on plants. हम लोग खुद से खाना नहीं बना सकते। हम लोग किस पे डिपेंडेबल हैं? हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेबल हैं। ओके चिल्ड्रन, बट सम प्लांट्स एंड सम एनिमल्स टेक देयर फूड इन लिक्विड फॉर्म एंड सम टेक्स इन सॉलिड फॉर्म. So living things need food and water, and non-living things do not need food and water. One thing children, I am going to say that plants, there is a plant, जैसे आप एक पॉट में आप प्लांट लगा दिए, अगर उस पॉट में आप वाटर नहीं डालोगे तो प्लांट सूख जाएगा. इट मीन्स प्लांट इज अ लिविंग बींग्स, दे ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव. बट एक बुक्स को, एक कॉपीज को फूड एंड वाटर की आवश्यकता नहीं है. दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रेस्पायर. इसका मतलब होता है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लिविंग बींग्स. अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा लिविंग थिंग्स में, उसके बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगी. जब उसके बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगी तो वह काम भी नहीं कर पाएगा. रेस्पिरेशन क्या होता है मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार और समझ लीजिए. व्हाट इज रेस्पिरेशन? वी ऑल लिविंग बींग्स, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स और एनिमल्स हो, टेक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेता है. दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ आवर फूड, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है एंड गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. और ये इसी एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. इन प्लांट्स ऑल्सो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है और वह भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. सो चिल्ड्रन, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर. दिस इज द फोर्थ डिफरेंस. फिफ्थ डिफरेंस, लिविंग थिंग्स मूव. तो मूवमेंट टेक्स प्लेस इन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स में मूवमेंट होता है और ड्यूरिंग मूवमेंट वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है. क्यों? इन सर्च ऑफ फूड, फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर नीड्स. इसको फुलफिल करने के लिए लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मूवमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट, लेकिन ये नोटिसेबल नहीं है. हम क्या करते हैं, इसको नोटिस नहीं करते हैं कि प्लांट में मूवमेंट हुआ कि नहीं. प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है. प्लांट्स का रूट पोर्शन अंदर की तरफ जाता है, मूवमेंट हुआ. प्लांट का शूट पोर्शन ऊपर की तरफ जाता है, मूवमेंट हुआ. सो मूवमेंट टेक्स प्लेस इन लिविंग थिंग्स, बट देयर इज नो मूवमेंट टेक्स प्लेस इन नॉन लिविंग थिंग्स. आपके बुक्स, आपके कॉपीज में नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है. नेक्स्ट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. इसका मतलब होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुली, जैसे टच, लाइट, हीट, साउंड. अब सपोज करो आपको कोई आप अपने हाथ को कभी कोई गर्म चीज़ में डालते हो तो आप तुरंत हटा लेते हो, मतलब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपके बॉडी में उसी फीलिंग्स है. तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है. आप देखिए एक अर्थवर्म को ले लीजिए. अर्थवर्म
को अंधेरे में नहीं रहना चाहता, वो लाइट में नहीं रहना चाहता, वो चाहता है अंधेरे में रहना। अर्थवॉर्म के ऊपर आप सॉल्ट डाल दो, नमक डाल दो, उसके बॉडी से ब्लीडिंग होने लगेगी, उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है। हाँ, तो एंड प्लांट्स ऑल्सो गिव अ प्रॉपर स्टिमुली। प्लांट्स में भी इसी प्रकार की फीलिंग्स होती है, रिस्पॉन्स होती है। कैसे, देखो एक प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट, आप उसके लीफ को छुओगे तो क्या होगा, उसका लीफ जो होता है वह झुक जाता है, उसका लीफ जो होता है वह नीचे की तरफ गिर जाता है। हाँ, द ड्रूफिंग ऑफ अ लीफ ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट इज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। वो एक प्रकार का रिस्पॉन्स दे रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।